Our today's topic is 14.3 Magnetic Effect of Electric Current. Before we proceed, let us know something about it. You have learned that the needle of a magnetic compass points in the north-south direction when at rest. When a magnet is kept close to a current-carrying wire, the needle gets deflected. This we are going to learn in this point. Let us learn. Here, activity 14.5 is given. Take the cardboard tray from inside a discarded matchbox. Wrap an electric wire a few times around the cardboard tray. Here it is given the figure. Like this we have to do setup. This one is the cardboard tray of a matchbox. Place a small compass needle inside it. Now connect the free ends of this wire to an electric cell through a switch as shown in figure 14.17. So here it is, one setup is done. इसमें आपको क्या करना है, one matchbox cardboard empty box have to take inside it one compass box, inside it one compass needle have to keep, and two ends wrap wire around it, wrap wire around the matchbox, and the other ends, free ends have to connect to cell, switch and a bulb. बल्ब इसलिए कि आप जब स्विच ऑन करें तो बल्ब ऑन हो, तो सर्किट कंप्लीटेड है वो आपको पता चले, सो दैट वी कैन connect a bulb. So like this we have to do setup. Now what other thing have to do? Note the direction in which the compass needle is pointing. We know that compass needle pointed to always north side when it is at its rest position. Bring a bar magnet near the compass needle. अब बार मैग्नेट आप लोगों ने सीखा है 6th स्टैंडर्ड में भी, ऐसा एक बार मैग्नेट है जिससे आप नीडल के पास अगर लाओ देन नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड. मतलब नीडल जो है वो अपनी पोजीशन, अगर ये नीडल है तो उसकी पोजीशन थोड़ी मूव करेगी, दैट मीन्स इट विल बी डिफ्लेक्टेड व्हेन वी ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड. नाउ व्हाइल वॉचिंग द कंपास नीडल केयरफुली मूव द स्विच टू द ऑन पोजिशन. नाउ आप लोगों को सबसे पहले ये ऑफ पोजिशन में था, अब आपको स्विच ऑन करनी है. जैसे ही स्विच ऑन करेंगे पावर यहाँ से होके सर्किट कंप्लीट होगी. जब हम स्विच बंद करेंगे एंड बल्ब विल ग्लो, दैट मीन्स यू विल नो दैट पावर इज फ्लोइंग. फाइन. अब क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. ऑब्वियसली जब हम करंट पास करेंगे उसमें से सर्किट कंप्लीट होगी, अगेन द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड. डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट. येस, ऑब्वियसली ये होगा. मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन. डज द कंपास नीडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन. हाँ, इसमें भी ऐसा ही होगा कि जब पावर ऑन होगा तब कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी, मूव करेगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम पावर उसमें अब ऑफ करेंगे, कट करेंगे, कंपास नीडल अगेन जो अपनी रेस्ट पोजीशन पे है वहाँ पे आएगी, उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा नहीं. रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स. व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट. अब इसमें हम इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे हमें पता चला कि जब कंपास नीडल के आसपास अगर हम मैग्नेट को लाएं तो कंपास नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड. मैग्नेट के बदले अगर कंपास नीडल के आसपास कोई वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है तब भी कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करेगी. दैट मीन्स किसी भी वायर में जब करंट पास हो रहा है, वो सर्किट कंप्लीट है, तब वायर है उसमें भी एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसमें प्रोड्यूस होता है, सो दैट बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स. ओके. We know that the needle of a compass is a tiny magnet which points in north-south direction. When we bring a magnet close to it, the needle gets deflected.
We have also seen that compass needle gets deflected when the current flows in a nearby wire. Can you connect the two observations? When the current flows through a wire, does the wire behave like a magnet? Obviously children, वो as a magnet ही behave करेगा. Because of that reason, compass needle deflects. This is what a scientist called Hans Christian Ørsted also wondered. He was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire. So, when electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. तो ये हमारा conclusion हुआ इस experiment से. हमें क्या पता चला? So, we can say that when electric current passes through wire, it behaves like a magnet. जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर में से हम पास करेंगे तो वो वायर जो है वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा. दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड टू मेक मैग्नेट्स. डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग? लेट अस ट्राई इट आउट. तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करने से वायर मैग्नेट के जैसे वर्क करता है. तो इसके रिलेटेड हमें एक और एक्सपेरिमेंट जो दिया है वो करना है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट. हम अपनी तरफ से अब अपनी तरह खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं छोटा सा बैटरी का यूज़ करके, जिसमें आपको कुछ ऐसा करना है कि सबसे पहले आपको एक ऐसा सेटअप तैयार करना है. क्या करना है? एक नेल लेना है छोटा सा. यहाँ पे आपको मेजरमेंट भी दिया है. यू कैन सी चिल्ड्रन, हियर इट इज़. टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर एंड एन आयरन नेल. जो प्लास्टिक से है या क्लॉथ कवर्ड का जो वायर है कोटिंग का, वो आपको लेना है. उसके बाद आपको एक नेल लेना है, आयरन नेल, अराउंड 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. Wind the wire tightly around the nail in the form of a coil. Connect the free ends of the wire to the terminals to a cell through a switch as shown in figure. अब यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखाती हूँ अगेन कि आपको कुछ थोड़ा सा लंबा एक वायर लेना है, एक कील लेना है, नेल लेना है, और इसके आसपास ऐसे वायर जो है एकदम टाइटली कॉइल के जैसे इसके आसपास आपको बांधना है, बाउंड करना है. फाइन. अब इस वायर को ऐसे सेटअप करना है. एक हो गया हमारा सेल या बैटरी. उसके बाद है ये स्विच और ये कनेक्टिंग वायर. तो जब स्विच ऑन है, ऑफ है, सॉरी, जब स्विच ऑफ है और यहाँ पे कुछ नेल्स है, छोटे पिंस है या नेल्स, छोटी छोटी पिंस है और ये है नेल. ओके. तो यहाँ पे जब पिंस को अगर हम नेल के पास लगाएंगे जब स्विच ऑफ है तब, तो ये पिंस जो है वो अलग रहेगी, वहाँ पे क्लिंग होगी नहीं. लेकिन उसके बाद जब हम स्विच ऑन करेंगे और जब इस नेल को हम ये छोटी पिंस के पास लगाएंगे, देन पिंस विल बी क्लिंग टू द नेल. मतलब नेल के साथ ये चिपक जाएगी, ऐसे कि जैसे इसमें कोई मैग्नेट है या कोई मैग्नेट के जैसे कि जो नेल है ना, ये वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा. दैट मीन्स ये जो यहाँ पे नीचे छोटी सी पिंस हमने रखी है वो उसके साथ अट्रैक्ट होगी और चिपक जाएगी. फाइन. लेकिन एज सुन एज वी स्विच इट ऑफ अगेन, पिन जो है वो अगेन नीचे गिर जाएगी. दैट मीन्स इट विल फॉल ऑफ. दैट मीन्स मैग्नेट, ये कील में जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, दैट इट विल लूज इट. तो मैग्नेटिक फील्ड कब तक ऑन रहेगा? जब तक उसमें करंट पास हो रहा है. ओके चिल्ड्रन, इज इट क्लियर? लेट अस लर्न. प्लेस सम पिंस ऑन, one second. Place some pins on or near the end of the nail. Now switch on the current. What happens? Do the pins cling to the tip of the nail? हाँ, हो रहा है. जब हम करंट ऑन करेंगे तब ये पिंस जो है वो नेल के साथ वो क्लिंग हो गई, चिपक जाएगी. Switch off the current. Are the pins still clinging to the end of the nail? Not obviously.
पिंस जो है वो अगेन इट विल फॉल डाउन. द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट. मतलब जब तक इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है तब तक ही जो कील है, नेल है, वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगी. फाइन चिल्ड्रन, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ the coil generally loses its magnetism. Such coils are called electromagnets. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब क्या कि मेटल की कोई, खास करके आयरन की कोई चीज़ है, उसके आसपास वायर की कॉइल लगा दो, उसे टाइटली बांध दो और फिर उसमें से करंट पास करो, वायर में से करंट पास करो, देन दैट मेटल ऑब्जेक्ट विल बिहेव लाइक मैग्नेट. तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से ये मैग्नेट बनता है, सो दैट इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स. मतलब जितना स्ट्रॉन्ग उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट है उतना हैवी लोड हम उसमें उठा सकते हैं. लेकिन एक वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ द नंबर ऑफ कॉइल्स of wire wound around soft iron rod and the intensity of current passing through it is increased, the magnetic effect is further increased. Means कि यहाँ पे जो हमने वायर लिया है वो जितनी स्ट्रॉन्ग कॉइल है, जितनी हम ज़्यादा उस पर नंबर ऑफ कॉइल जो है उसे बढ़ाएं, जितनी ज़्यादा रखें, उसके बाद यहाँ से जो करंट जा रहा है उसकी इंटेंसिटी जितनी बढ़ाएं उतना ही ये मैग्नेट जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा. जितनी कॉइल ज़्यादा होगी, जितना करंट ज़्यादा पास होगा, उतना ही मैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा. तो बहुत सी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है. किससे? जैसे हैवी लोड कैरी करने के लिए. यू हैव लर्न इन प्रीवियस स्टैंडर्ड. For example, the end of such a crane has a strong electromagnet. वो क्रेन का यूज़ होता है बहुत ही हैवी मटेरियल को उठाने के लिए क्रेन का यूज़ होता है, तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है. The electromagnets are also used to separate magnetic materials from junk. तो ये खास करके डॉकयार्ड है या ऐसे बहुत सारे मिक्स मटेरियल का ढेर है, उसमें से मेटल का मटेरियल, जो मेटल आपको पता है कि मेटल को अट्रैक्ट करता है, तो उसे अलग करने के लिए मैग्नेट का यूज़ होता है. तो जैसे ही मैग्नेट इस ढेर के अंदर उसमें घुमाएंगे, मेटल मटेरियल जो होगा वो इस डिवाइस के साथ वो स्टक होके फिर उसे सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है या वुड है तो इट विल नॉट स्टक. फाइन. और जो है डॉक्टर्स यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the eye. Many toys also have electromagnets inside them. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं चिल्ड्रन. आप लोग अपनी तरफ से कुछ लिस्ट बना सकते हो कि कौन कौन सी ऐसे प्लेसेस है, कौन कौन सी ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है. और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक बेल. We are quite familiar with an electric bell. It has an electromagnet in it. Let us see how it works. इलेक्ट्रिक बेल के बारे में चिल्ड्रन अब हम सबको पता है कि जैसे हम बेल दबाएंगे तो रिंग बजेगी, एक साउंड बजेगा. बट हाउ इट प्रोड्यूसेस, सो लेट अस सी. बट बिफोर दैट लेट अस सी, हियर इट इज़ वन फिगर इज गिवन. अब इसके पार्ट्स के बारे में हम पता करें. लेट अस सी इट्स पार्ट्स. Now, as we can see in the figure, the general diagram of an electric bell is like this. This one is the battery or cell, then electromagnet, here it is electromagnet, then this one here at the bottom switch is there. Fine. Now this one is a bell, or it is also called gong, or it is also called gong. Then striker जो है जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा बेल साउंड विल रिंग. ओके. देन स्प्रिंगी मेटल जो एकदम स्प्रिंगी या हल्का फुल्का होता है सॉफ्ट मटेरियल का, सो दैट
ये जो स्ट्राइकर है उसे क्विकली यहाँ पे स्ट्राइक कर सके। देन आयरन पीस है जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए इलेक्ट्रोमैग्नेट की ओर। द नेक्स्ट वन इज मेक एंड ब्रेक कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट जब इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करे तब इसे कॉन्टैक्ट में आए और उसके बाद अगेन इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, सो कॉन्टैक्ट विल लूज। तो ये काम कैसे करता है, लेट अस सी। इट इज़ गिवन इन अ टेक्स्ट बुक, वन फिगर इज गिवन 14.20. Okay, let us have a look. Figure 14.20 shows the circuit of an electric bell. It consists of a coil of wire wounded on an iron piece. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आयरन पीस के आसपास ये वायर को ऐसे बांधा है या कॉइल किया है। The coil acts as an electromagnet. So here we can see these are electromagnets. An iron strip with a hammer at the end is kept close to the electromagnet. Iron strip कहाँ पे है? Let us see. This one is the iron strip और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के एकदम पास में है। There is a contact screw near the iron strip. कॉन्टैक्ट स्क्रू कहाँ है? दिस वन इज द कॉन्टैक्ट स्क्रू, वो आयरन स्ट्रिप के आसपास में है। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आयरन स्ट्रिप और स्क्रू, आयरन स्ट्रिप ये और ये स्क्रू जब ये दोनों कांटेक्ट में है, दैट टाइम द सर्किट विल बी completed and current will flow in the wire, and so that the electromagnets will start to behave like magnet. It then pulls the iron strip. In the process, the hammer at the end of the strip strikes the gong of the bell to produce a sound. अब सिंपली अगर हम समझे तो क्या होगा कि ये आयरन स्ट्रिप, वन आयरन स्ट्रिप एंड स्क्रू जब कांटेक्ट में है, देन करंट विल फ्लो एंड द कॉइल विल स्टार्ट टू बिहेव लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट. फाइन. So when they have now magnetic field, so it will attract the strip. ये स्ट्राइकर जो है उसकी स्ट्रिप को वो अट्रैक्ट करेगा. जैसे ही अट्रैक्ट करेगा, स्ट्राइकर विल स्ट्राइक द गोंग और हैमर. द हैमर जो है वो गोंग पे स्ट्राइक करेगा. तो एक साइकिल ये हुई कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऑन हुआ, इट विल अट्रैक्ट द हैमर एंड सो इट विल स्ट्राइक द गोंग. ये हुआ. लेकिन जैसे ही वो यहाँ से स्ट्राइक करेगा, जैसे ही ये थोड़ा आगे आएगा, यहाँ से स्क्रू के साथ इस स्ट्रिप का कांटेक्ट जो है वो लूज हो जाएगा. दैट मीन्स डिटेच हो जाएगा. स्क्रू और स्ट्रिप के बीच का कांटेक्ट जो है वो टूट जाएगा. जब स्ट्रिप और स्क्रू के बीच का कनेक्शन टूट जाएगा, दैट टाइम सर्किट विल ब्रेक एंड करंट विल स्टॉप टू फ्लो. जैसे ही करंट स्टॉप करेगा, ये कॉइल में से मैग्नेटिक पावर नहीं रहेगा. दैट मीन्स इट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म. ओके. सो अगेन जैसे ही मैग्नेटिज्म खत्म हुआ तो इसे अट्रैक्शन यहाँ से छूट जाएगा एंड अगेन इट विल प्लेस टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. इट विल मूव टू ये जो हैमर की स्ट्रिप है वो अगेन अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे चली जाएगी. However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit. क्योंकि स्क्रू और स्ट्रिप के बीच का कांटेक्ट रहेगा नहीं. The current through the coil stops flowing. Will the coil remain an electromagnet? Not at all. Because जब तक इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो रहा है तब तक ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे बिहेव करेगा. जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हुआ,
it will lose its magnetism. The coil is no longer an electromagnet. It no longer attracts the iron strip. The iron strip comes back to its original position and touches the contact screw again. That means जैसे ही इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पावर ख़त्म हुआ, ये स्ट्रिप अगेन अपनी मेन पोजीशन पे जाएगी और अगेन स्क्रू के साथ टच होगी. जैसे ही स्क्रू के साथ टच होगी फिर से करंट फ्लो होगा, फिर से ये मैग्नेट बनेगा, फिर से इसे अट्रैक्ट करेगा और हैमर जो है वो गोंग पे स्ट्राइक करेगा. The iron strip comes back to its original position and touches the contact screw again. This completes the circuit. The current flows in the coil and the hammer strikes the gong again. This process is repeated in quick succession. The hammer strikes the gong every time the circuit is completed. This is how the bell rings. So this was the simple mechanism of electric bell. This was the last topic of our lesson. I hope all this is clear to you, children. Read the lesson carefully and take care of yourself, children. Bye bye and thank you.